હિંડોળાની ભાવના ચાર યુથાધિપતિમાં શ્રી સ્વામિનીજી, શ્રી ચંદ્રાવલીજી, શ્રી રાધા સહચરીજી, શ્રી યમુનાજીના ભાવથી 8 મનોરથ થાય છે. જમણા, ડાબા અને ઉપરનો આડો એમ 3 ખંભ છે. ક્રમશઃ શ્રી ચંદ્રાવલીજી, શ્રી લલિતાજી અને શ્રી વિશાખાજીના ભાવથી ઉપરના કળશ દાંડી સખીઓના ભાવથી છે. એટલે જમણો ખંભ એ શ્રી ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી, ડાબો ખંભ શ્રી લલિતાજીના ભાવથી અને ઉપરનો આડો એ ખંભ શ્રી વિશાખાજીના ભાવથી આવે છે. અને ઉપરના કળશ દાંડી સખીઓના ભાવથી છે. હિંડોળા શ્રી સ્વામિનીજીના પ્રેમનું સૂચન કરે છે, પ્રેમનો ભાવ છે. શ્રી સ્વામિનીજીઓ પ્રભુને ઝુલાવે અને શ્રી યુગલ સ્વરૂપને પણ ઝુલાવે. શ્રી ઠાકોરજી પણ શ્રી સ્વામિનીજી તથા અન્ય સખીઓને ઝુલાવે છે. હિંડોળા ઉત્સવમાં કિશોર ભાવ છે, તેથી ડોલતી બારીમાં અથવા બગીચામાં સજાવાય છે. હિંડોળા લીલામાં 4 ઘટાઓ 4 યુથાધિપતિના ભાવથી, પીળી અને ગુલાબી ઘટા શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવથી, સફેદ અને કેસરી ઘટા શ્રી શ્રુતિરૂપાના ભાવથી એટલે કે ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી, કસુંબી, લાલ, હરિયાળી, લીલી ઋષિરૂપાના ભાવથી અને શ્યામ અને ભૂરી ઘટા શ્રી યમુનાજીના ભાવથી આ વખતે 6 ઋતુઓ પણ સખી સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ સેવા કરે છે. ખટ ઋતુની સેવા ભાવનામાં પણ એ પ્રકાર આવે છે. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિ માર્ગમાં હિંડોળાના 32 દિવસની ખૂબ જ સુંદર ભાવના આપણે હિંડોળાના પદોના ભાવ દર્શન સાથે સમજવાના છીએ. અષાઢ વદ એકમથી શ્રાવણ વદ બીજ સુધી 32 દિવસ પ્રભુ હિંડોળે ઝૂલે છે. તો ચાલો તેનું ભાવ દર્શન કરીએ. અલગ અલગ પુસ્તકોમાંથી વર્ણન લઈશું. કદાચ રિપીટ થાય તો તેમાં કંઈ જ ખોટું નથી, કારણ કે વધુ ભાવ દ્રઢ થાય. કેમ કે હિન્દી, ગુજરાતી અને વ્રજ ભાષા 3 પ્રકારના પુસ્તકો છે. અલગ અલગ લઈશું અને કંઈક નવું જાણવા પણ મળશે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મનાતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વાલા વૈષ્ણવો, શ્રીનાથજી અષાઢ વદ એકમના દિવસે પ્રભુને હિંડોળે ઝુલાવવાની શરૂઆત થાય છે. એટલે આજથી શ્રાવણ વદ બીજ સુધીના 32 દિવસ પ્રભુ હિંડોળે ઝૂલે છે. એ 4 યુથાધિપતિઓના ભાવથી 8 દિવસ એમ 32 દિવસ ઝૂલે છે. વ્રજમાં 4 જગ્યાએ હિંડોળા થાય છે. ધ્યાન આપજો, વ્રજમાં 4 સ્થળે હિંડોળા થાય છે. નંદાલયમાં, બીજું નિકુંજમાં, ત્રીજું શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર તથા શ્રી યમુનાજી પુલિન ઉપર. 16 દિવસ શ્રી ઠાકોરજીના અને 16 દિવસ શ્રી સ્વામિનીજીના એમ યુગલ સ્વરૂપની ભાવનાથી પણ 32 દિવસ ઝૂલે છે. આ દિવસોમાં નિત્ય નવીન રંગીન સાજ આવે છે. સોનાના જડાઉ પંખા, બંટા વગેરે આવે છે. ડોલતી બારીમાં પહેલા દિવસે ચાંદીનો હિંડોળો ખડો થાય છે. આ હિંડોળો 32 દિવસ રહે છે. તેના ઉપર જ નિત્ય નવા કલાત્મક ફૂલપાનના હિંડોળા બને છે. હિંડોળાની નીચે આસન બિછાવાય છે. ઉત્થાપન પછી શંખ, ઝાલર, ઘંટાના સાથે શ્રી ઠાકોરજી હિંડોળે પધારે છે. નાથદ્વારામાં હિંડોળામાં શ્રી મદન મોહનજી અને શ્રી બાલકૃષ્ણજી ઝૂલે છે. શ્રી મદન મોહનજી નિત્ય વેણુ ધરતા નથી, કારણ કે શ્રી વેણુ દ્વારા કામદેવને પણ તેઓ મોહિત કરી શકે છે. પરંતુ હિંડોળાના 32 દિવસ વેણુ દ્વારા સૌના મન મોહિત કરવાના ભાવથી શ્રી મદન મોહનજી હિંડોળામાં વેણુજી ધરે છે. શ્રી મદન મોહનજી કિશોર ભાવથી અને શ્રી બાલકૃષ્ણજી બાલ ભાવથી ઝૂલે છે. શ્રી બાલકૃષ્ણજી દરરોજ ઝૂલતા નથી. હિંડોળાની લીલા કિશોર ભાવની લીલા છે. હિંડોળે કોઈ પણ સ્વરૂપે ઝૂલે, પરંતુ કિશોર ભાવની લીલા હોવાથી શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી, શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, શ્રી મદન મોહનજી અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજી એમ 4 કિશોર ભાવના સ્વરૂપોને સંબોધીને જ કીર્તન થાય છે. અને ગોવિંદ સ્વામીના 4 પદો ગાવાના હોય છે. હજી આપણે વધુ સમજીશું કે શ્રીનાથજીની સન્મુખ ડોલતી બારીમાં મદન મોહનજી ચાંદીના હિંડોળામાં ઝૂલે છે અને શ્રી મદન મોહનજીને વસ્ત્ર તથા શ્રી મસ્તકના શ્રૃંગાર શ્રીનાથજી જેવા જ ધરાવવામાં આવે છે.
આજે હિંડોળાનું અધિવાસન થાય ત્યારે ગવાતું કીર્તન પરિશિષ્ટમાં આપ્યું છે. અધિવાસન સમયે તે કીર્તન ગવાય છે. હિંડોળાના પ્રથમ દિવસે ગોવિંદ સ્વામીના નીચે લખેલા 4 કીર્તનો પણ ગવાય છે. તો ચાલો સૌપ્રથમ હિંડોળા અધિવાસનનું પદ જોઈ લઈએ. શ્રીનાથજી. હિંડોળા અધિવાસન. હિંડોળા પ્રારંભ. હિંડોળા અધિવાસનનું પદ છે રોપ્યો હિંડોરો નંદગૃહ મુહૂર્ત શોભ ધરી દેખ મુહૂર્ત શુભ ઘડી દેખ વિશ્વકર્મા રચી પછી ગઢ્યો સુહાતક રત્ન વિશેખ. હિંડોર ના હો રોપ્યો નંદ આવાસ હિંડોર ના હો મણિમય ભૂમિ સુવાસ. હિંડોર ના હો વિશ્વકર્મા સૂત્રધાર હિંડોર ના હો કંચન ખંભ સુધાર. કંચન ખંભ સુધાર રાંડી સાલ ભમરા ફરી રહે. હીરા પિરોજા કનકમણિમય જ્યોતિ અતિ જગમગ રહે. ચિત્ર ફટીક પ્રકાશ ચહુદિશ કહા કહું નિર્મોલના કહે કૃષ્ણદાસ વિલાસ નિષદિન નંદ ભવન હિંડોરના. 16 સહસ્રોજ સુંદરી નિરખત શ્યામ સુભાય અતિ આનંદે હુલસ કે યુવજન હિલમિલ ગાય. હિંડોર ના હો યુવજન હિલમિલ ગાય હિંડોર ના હો આનંદ ઉર ન સમાય. હિંડોર ના હો નિરખત નયન નિહાર હિંડોર ના હો 16 સહસ્ર રજનાર. 16 સહસ્ર સબ जुर के आई फिर न उलटी भवन गई. नवनेह नयन कुरंगी राची अच्युत तन मन मय भई. पीत लहंगा लाल चुनरी श्याम कंचु की बाय कहे कृष्णदास विलास निषदिन युवजन हिलमिल गाय. रुनक झुनक नुपुर बजे किंकिणी कवणित रसाल परम चतुर बनवारी है झूलवत सुंदर नार. हिंडोर ना हो झूलवत सुंदर नार हिंडोर ना हो परम चतुर बनवार. हिंडोर ना हो रमकन जमक विशाल हिंडोर ना हो किंकणी कवणित रसाल. कवणित किंकिणी ऋणत नुपुर जड़ित तरो ना सोही उर उड़त अंचल मदन वेरख देख गिरिधर मोही. खसित फूल जो शिथिल वेणी गुप्त प्रकट विहार कहे कृष्णदास विलास निषदिन झूलवत सुंदर नार. गावत सुगर रस भेद सो तान मान बंधान ऋषि देत वृषभानुजा हरिगुण सकल निधान. हिंडोर ना हो हरिगुण सकल निधान हिंडोर ना हो श्री राधा जु परम सुजान. हिंडोर ना हो गावत सुगर समाज हिंडोर ना हो मुरली मधुर धुनि बाज. ताल मुरली बिन बाजे लाल गिरिधर गावही हरख सुरपति कुसुम वरखे नभ निशान बजावही. વાલા વૈષ્ણવો, હમણાં જે પદ ગાયું તેનો ભાવાર્થ હિન્દીમાં સમજીએ, કારણ કે હમણાં અમે નાથદ્વારા ગયા હતા ત્યાંથી પદ ભાવાર્થ સહિત પદના 2 પુસ્તક પધરાવ્યા છે, પરંતુ તેમાં હિન્દીમાં છે. તો આપણને બધાને હિન્દી તો સમજાય જ છે. તો આ પદનો ભાવાર્થ સમજીએ. भावार्थ शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी में श्री नंद बाबा के घर के आंगन में हिंडोरा स्थापित किया गया है. विश्वकर्मा जी ने बहुत मेहनत करके इसे रत्नों से बनाया है. कंचन के खंभ हैं जिन पर मणिया जड़ी है. भूमि भी जगमगा रही है. हीरा पिरोजा सोना मणिया चारों ओर चमक रही है. उनका चारों ओर प्रकाश हो रहा है. रोज ही श्री नंद भवन में नव विलास हो रहे हैं. 16,000 रजबालाएं चारों ओर से इकट्ठी हुई थी. वापस अपने घर नहीं गई. प्रभु प्रेम में तन मन में रंग गई है. पीला लहंगा लाल चुनरी श्याम रंग चोली पहन रखी है. सब मिलकर गा रही हैं. पैरों के नुपुर रुनक चुनक बज रहे हैं. कमर में करधनी झनकार रही है. परम चतुर श्री वनवारी जी को सुंदरिया हिंडोरना झुला रही है. कभी धीरे धीरे कभी तेज इस प्रकार से झोटे दे रही है. उनके आंचल उड़ रहे हैं. सिर में शोभित हुई वेणी यानी छोटी फिसल रही है. प्रभु को झुलाने में मग्न होने के कारण उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं है. श्री प्रभु सकल गुण शिरोमणि है. श्री राधा जी उन पर मोहित हो रही है. सभी लोग इकट्ठे होकर हिंडोरा गा रहे हैं.
मधुर स्वर में मुरली बज रही है। श्री गिरधर लाल मुरली पर मधुर स्वर गा रहे हैं। देवता लोग इस दृश्य को देखकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आकाश में निशान बज रहे हैं। श्री प्रभु भी ताली बजा रहे हैं। गोपों ने नटवेश बना रखा है, सो सब लोग देखने आ रहे हैं। जो सुख श्री गोकुल में प्राप्त हो रहा है वह तो उस समय वैकुंठ में भी नहीं है। सभी हिंडोरे के दर्शन करना चाहते हैं और श्री प्रभु को हृदय में धारण करना चाहते हैं। श्याम सुंदर भक्तों पर कृपा करने वाले गिरधर लाल है। श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं कि रोज ही इस प्रकार की लीलाएं श्री गोकुल में होती हैं। श्री यमुना जी के किनारे जो संकेत वन है वहाँ भी रोज ही इस प्रकार की लीला होती है। कुंज में विहार करने गिरि गोवर्धन को धारण करने वाले आप मेरे हृदय में वास करो। आ रीते અહીં જે આપણે પદ હમણાં બોલ્યા તેનો ભાવાર્થ છે। વાલા વૈષ્ણવો અંત સુધી જોડાયેલા રહેશો તો હજી ગોવિંદ સ્વામીના જે 4 પદ દરરોજ બોલવાના હોય છે હિંડોળાના તેનું પણ આપણે ભાવ દર્શન કરીશું, પરંતુ હજી થોડીક ભાવના પહેલા સમજી લઈએ। એટલે જે નવા પુસ્તકો પધરાવ્યા છે તેમાંથી અત્યારે લઈ રહી છું અને અગાઉ શ્રીનાથજી સેવર સુગતિમાંથી જે લીધું હતું એ પાછળ એડ કરીશ કે જેના કારણે નવું થોડુંક આપણને જાણવા મળે। श्रावण कृष्ण एकम से मुहूर्त अनुसार 1 मास तक हिंडोरे में प्रभु बिराजते हैं। अभ्यंग के पद, खंडिता के पद मल्हार राग में गाए जाते हैं। संध्या भोग आरती के बाद में हिंडोरे में प्रभु बिराजते हैं। उस समय हिंडोरा रोपियोनंद आवास से प्रारंभ कर गोविंद स्वामी के 4 हिंडोरा के पद सबके यहाँ गाए जाते हैं। हर दिन हिंडोरे में जब बिराजे तब हिंडोरे के पद बोले जाते हैं। पद श्रृंगार घटा कुंज के अनुसार गाए जाते हैं। हिंडोरे के मान पोढ़ने के पद संख्या समय के रागों में गाते हैं। श्रावण कृष्ण एकम आज के दिन चंद्र बल के आधार पर मुहूर्त से हिंडोरा रोपा जाता है। पूरे श्रावण मास में यह लगा रहता है। इस दिन प्रभु को अभ्यंग होकर स्नानादि के पश्चात श्रृंगार धराया जाता है। संध्या में उत्थापन के बाद अधिवासन होकर प्रिया प्रीतम डोलती बारी में हिंडोला झूलने पधारते हैं। झूले में ही भोग आता है। इसी दिन से मणिकोठे व डोलती बारी में दीवालगिरी व चंदोवे प्रतिदिन नए नए आने लग जाते हैं। इसी दिन से जन्माष्टमी तक झांझों की बधाई बैठ जाती है। श्रावण सुदी तीज यानी ठकुरानी तीज संध्या के समय किसी घर में 3 बार झूलते हैं। एक बार भीतर शय्या मंदिर में, दूसरी बार ठकुरानी तीज के भाव से, तीसरी बार शयन भोग सरने के बाद कुंज के भाव तथा मान पोढ़वे में भी मल्हार राग में पद गाते हैं। किसी घर में चुंदड़ी का श्रृंगार होता है तो उसके अनुसार पद गाते हैं। श्रावण कृष्ण अष्टमी आज के दिन जन्माष्टमी की बधाई प्रारंभ हो जाती है तथा सलमा सितारे के काम वाला केसरिया हिंडोरा रोपा जाता है। એટલે વાલા વૈષ્ણવો હિંડોળાની ખૂબ જ સુંદર ભાવના છે અને પ્રભુને નું આંદોલિત સ્વરૂપ આપણા હૃદયમાં બિરાજે એ ભાવના કરવાની છે। ઓ શ્રીનાથજી વાલા વૈષ્ણવો શ્રીનાથ દ્વારકા सांस्कृतिक इतिहास એ પુસ્તકમાં હિંડોળાની ભાવનામાં દર્શાવ્યું છે कि चंद्रबल के आधार पर मुहूर्त से हिंडोला रोपा जाता है। पूरे श्रावण मास यह लगा रहता है और इसी पर अन्य सभी हिंडोले सजते हैं। इस दिन प्रभु का अभ्यंग होकर स्नानादि के पश्चात उपयुक्त श्रृंगार धराया जाता है। संध्या में उत्थापन के पश्चात अधिवासन होकर प्रिया प्रीतम डोलती बारी में हिंडोला झूलने पधारते हैं। झूले में ही भोग आता है। भोग सरने के पश्चात आचार्य वंशज प्रभु को झूला झूलाते हैं। तदंतर सर्व साधारण के लिए श्री मदन मोहन जी वो श्री बालकृष्ण जी के झूलते हुए दर्शन खुलते हैं। इसमें सहचरी भाव से सभी सेवक वर्ग चौवर मोलछर और पंखा करते रहते। ध्यान आप जो सहचरी भाव से सर्व सेवक वर्ग चौवर मोरछल और पंखा करते रहते हैं। सन्मुख कीर्तन समाज होता है। पदगान के पश्चात प्रभु भीतर पधार जाते हैं। आरती होती है। इसी दिन से मणिकोठे व डोलती बारी में दीवालगिरी व चंदवे प्रतिदिन नए नए आने लग जाते हैं। इसी दिन से जन्माष्टमी तक झांझों की बधाई बैठ जाती है। હવે ગોવિંદ સ્વામીના જે 4 પદ આપણે હિંડોળાના પદોમાં બોલવાના હોય છે તેનું ભાવ દર્શન કરી લઈએ।
तैसो ही वृंदावन, तैसी ये हरित भूमि, तैसी ही वीर वधु चलत सुहाई माई, तैसी ही कोकिला कल कुहु कुहु कुजत, तैसे ही नाचत मोर निरखत नैना सुखदाई माई, तैसे ये नवरंग बनी जोरी, तैसे ही गावत राग मलार मन भाई, गोविंद प्रभु सुरंग हिंडोरे झूले, फूले पाछे रंग भरे, चहु दिशी तेजू घटा जूरी आई। એટલે અહીં કહે છે કે માई यह सुंदर से वृंदावन, उस पर यह हरित भूमि, उस पर यह वीर वधुतियां चलती हुई सुंदर लग रही है। तैसे ही कोयल कुहू कुहू कर कूक रही है, मोर नाच रहे हैं, नैन यह सुखदायक दृश्य देख रहे हैं। वैसे ही यह नवरंग जोड़ी बनी हुई है, वैसा ही मन भाया मल्हार राग गा रहे हैं। श्री गोविंद स्वामी जी के प्रभु सुरंग हिंडोरे में झूलकर खूब प्रसन्न है, चारों ओर से घटा घिर आई है, आप हिंडोरे का आनंद ले रहे हैं। આગળ કહે છે झूलत सुरंग हिंडोरे, राधा मोहन बरन बरन तन चुनरी पहरे, ब्रजवधु चहु ओरे, राग मल्हार अलापति, सप्त सुरनी तीन ग्राम जोरे, मदन मोहन झुकी या छबी ઉપર ગોવિંદ બલિ તૃણ તોરે। એટલે કહે છે कि सुरंग रंग सुंदर रंग के हिंडोले में राधा मोहन झूल रहे हैं, तरह तरह के रंग की चुनरी पहने ब्रजवधुए चारों ओर शोभित है, 7 सुरों और 3 ग्राम में जोर से मल्हार राग आलाप रही है। श्री मदन मोहन जी की इस छवि पर श्री गोविंदास जी बलिहारी जाते हैं। આગળ કહે છે रंग मच्यो सिंह द्वार हिंडोरे वझूलना, गौर श्याम तन नील पीत पट, घन दामिनी हेम बिराजत, निरख निरख व्रज जन मन फूलना, उर परवन माल सोहे, इंद्र धनुष्य मान उदित भयो, मोती नहार बज पंक्ति समतुलना, बरसत नव रूप वारी, गोख अवनी रत्न खचित, गोविंद प्रभु निरख कोटि मदन भूलना। એટલે અહીં કહે છે કે सिंह द्वार पर हिंडोरा झूलने को सब इकट्ठे हुए हैं, गोरा और श्याम शरीर, उन पर नीला और पीला वस्त्र, मानो बादल और बिजली के साथ चंद्रमा शोभायमान है। देख देख कर व्रजजनों के मन प्रसन्न हो रहे हैं। हृदय के ऊपर वनमाला शोभित है, मानो इंद्रधनुष धनुष्य उदय हुआ है। मोतियों की माला बगुलों की कतार से तुल्ला पा रही है। ब्रजभूमि रत्न सचित उर्स पर नूतन रूप जल बरस रहा है। श्री गोविंद स्वामी जी के श्री प्रभु का यह दृश्य देख करोड़ों कामदेव अपनी सुध भूल गए हैं। चौथું પદ છે ઝૂલન આઈ વ્રજનારી, गिरिधरन लाल जूके सुरंग हिंडोरना, सुभग कंचन तन पहरे, कसुंभी सारी, गावत परस्पर हस मृदु बोलना, इतनंद लाल रसिक वर सुंदर, उत वृषभान सुता छवि सोना, रवकत रंग रहियो पिय प्यारी, गोविंद बल बल रतिपति जोहना। એટલે અહીં કહે છે कि व्रजनारिया श्री गिरधरलाल जी के यहाँ सुरंग हिंडोलना झूलने आई है। सुंदर सुनहरे शरीर पर कसुंभी साड़ी पहने सब गा रही है और परस्पर हंस हंस कर मीठी बातें कर रही है। इधर रसिकवर सुंदर श्री नंदलाल है, उधर सुंदर छवि वाले श्री ऋषभानु जी की बेटी श्री राधा जी है। प्रिय और प्यारी मरकत मणि के रंग के हो रहे हैं। श्री गोविंद स्वामी बलिहार हैं, कामदेव दर्शन कर रहे हैं। आ रीते हिंडोळाना गोविंद स्वामी रचित 4 पदोનું આપણે ભાવ દર્શન કર્યું। વાલા વૈષ્ણવો, હવે એક ચિત્ત સાંભળીને થોડી કલ્પના કરજો, ખૂબ જ આનંદ આવશે। સવારનો સમય છે, મંગળાનો સમય છે અને ખંડિતાના પદમાં ગોપીજનો કહી રહ્યા છે કે હે લાલ, अब प्रातः काल मेरे यहाँ हिंडोलना झूलने आए हो। तुम्हारी पगड़ी ढीली ढीली हो रही है, आंखें अलसाई हैं
और चकोर सी प्रतीत हो रही है। मुर्गा बोलने तक 4 प्रहर मैंने तड़प तड़प कर बिताए हैं। बताओ आप रात को कहाँ रहे हो, वहीं चले जाओ। प्रातःकाल उठकर श्री राधा व श्री ठाकुर जी कुंज में झूला झूल रहे हैं। अधर और कपोल अस्त व्यस्त हो रहे हैं। दोनों नेत्र उनिंदे सुशोभित हैं, नखरेखा के निशान हैं और हाथ टूट रहे हैं। माला मुरझाई है, केश ढीले हो रहे हैं, नेत्र लाल हैं। प्रभु श्री ठाकुर जी इस छवि को निरखने पर करोड़ों कामदेव भी तृण तुल्य तुच्छ हो रहे हैं। सिर से चरण तक प्रभु और श्री स्वामिनी जी ने श्रृंगार धारण किया है। कुंज में आकर हिंडोरे में झूल रहे हैं। आपस में अपने मुखारविंद की छवि को दर्पण में देखते हुए धीरे धीरे दोनों मधुर आवाज में बंसी बजा रहे हैं। चारों ओर से घटा उमड़ रही है, उसमें आपकी छवि और सुंदर लग रही है। धीरे धीरे बादल गरज रहे हैं और नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही है जो मन को सुहाने जैसी है। आकाश में पंचरंगी इंद्रधनुष शोभित हो रहे हैं, जिसमें आपकी छवि के दर्शन हो रहे हैं। डादूर, मोर, चकोर, तोता, कोयल, पपैया सभी प्रसन्न होकर पीयू पीयू गा रहे हैं। उन पक्षियों की तरह वन भी प्रसन्न है, क्योंकि कई प्रकार के फल फूल का पराग चारों दिशा में छा रहा है। श्री रसिकदास जी के प्रभु को सब रजबालाएं झुलाते हुए मधुर स्वर में गा रही है। सिंह द्वार पर हिंडोरा झूलने को सब इकट्ठे हुए हैं। गोरा और श्याम शरीर, उन पर नीला और पीला वस्त्र, मानो बादल और बिजली के साथ चंद्रमा शोभायमान है। देख देख कर रजजनों के मन में प्रसन्न हो रहे हैं। हृदय के ऊपर वनमाला शोभित है, मानो इंद्रधनुष उदय हुआ है। मोतियों की माला बगुलों की कतार से तुलना पा रही है। ब्रजभूमि रत्न संचित, उस पर नूतन रूप जल बरस रहा है। श्री गोविंद स्वामी के प्रभु का यह दृश्य देखकर करोड़ों कामदेव अपनी सुध-बुध भूल गए हैं। माई, यह सुंदर वृंदावन, उस पर यह हरित भूमि, उस पर यह वीर वधूतियां चलती हुई सुंदर लग रही है। तैसे ही कोयल कुहू कुहू कर रही है, मोर नाच रहे हैं, नैन यहाँ सुखदायक दृश्य देख रहे हैं। वैसे ही यह नवरंग जोड़ी बनी हुई है, वैसा ही मन भाया मल्हार राग गा रहे हैं। श्री गोविंद दास जी के श्री प्रभु सुरंग हिंडोरे में झूलकर खूब प्रसन्न है। चारों ओर से घटा घिर आई है, आप हिंडोरे का आनंद ले रहे हैं। हे सखी, श्री नंद कुमार झूल रहे हैं। किरण के तुल्य नैन हंस के समान चलने वाली युवतियों ने सब श्रृंगार सजा रखे हैं। सुंदर रंग वाले कदम वृक्ष के खंभे हैं और मरुए मेरू ठीक उतार चढ़ाव युक्त है। सूत्रधार ने उसकी 4 डांडिया चमकदार रचपच कर बनाई है। हीरा जड़ित स्वर्ण से बनी स्वर्णकार ने बड़ी सुंदर बनाई है। चारों ओर लाल रंग के वस्त्रों वाली युवतियां किंकिणी झनकार करती घूम रही हैं। जिनके हृदय पर हार झलक रहे हैं। कस्तूरी, अगर, कपूर और कुमकुम की सुगंध उड़ रही है। परम उदार श्री श्याम श्यामा मुख में पान आरोगे हुए हैं। रस रीति की पाठशाला में सुखदायक गीत गा रहे हैं। गान स्वर और षडग्राम में सदा है, ताल और तान का पार नहीं है। रीते रिझाते वर्षा से भीगे हैं, राग मल्हार जम रहा है। तोते, मोर और कोयल कूक रहे हैं। भिन्न भिन्न सुरों का संगम हो रहा है। बादलों में जल की फुहारें गिर रही है। लाज छोड़कर प्रभु जी श्री स्वामिनी जी से लिपट रहे हैं। यह देख के कहने को मन करता है, वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, अने शू करी जाऊं। वेद मर्यादा का विचार छोड़ दिया है। मधुसूदन की छवि ऐसी शोभा दे रही है कि करोड़ों कामदेव बलिहार हो रहे हैं। पर्वत कहते हैं कि भक्तजनों के आधार श्री श्याम श्यामा चिरंजीव। श्री व्रजनारियां आज वन में उमंग में भर कर उमड़ रही है। बिना किसी संकोच के प्रसन्नता से फूली गुणगान करती फिर रही है। प्राण प्यारी श्री राधा झूल रही है। एक पुष्प लेकर ऊपर से डालती है, दूसरी खड़ी देख रही है।
एक दौड़ कर आती है और श्री मोहन को श्रीअंक में भर लेती है, गाढ़ आलिंगन करती है। प्यारी के तन पर नीला और पिया के तन पर पीला वस्त्र शोभित है, सारे श्रृंगार कर रखे हैं। श्री सूरदास जी कहते हैं कि श्री राधा जी संग श्री प्रभु विलास कर रहे हैं, दोनों एक ही है। रूप बेउ एक ते भिन्न थई विस्तरे। माई रस भरे श्यामा श्याम सुंदर हिंडोले में झूल रहे हैं। गोरे वर्ण श्री राधा जी, श्याम वर्ण श्री प्रभु जी। विशाल नेत्रों की छवि अच्छी लग रही है, मन को भा रही है। 7 स्वरों और 3 ग्राम में मुरली के मधुर ध्वनि आलाप रहे हैं। श्री नंदन मोहन श्री प्यारी श्री राधा पर प्रीतम प्रसन्न हो रहे हैं। श्री गोपियां श्री गोविंद के यहाँ सुंदर रंग के हिंडोरे में झूलने आई है। अच्छे निर्मल परम पवित्र गुणों वाली प्रथम पुष्पित लता से सुंदर अंगुलियों में मणिजड़ित अंगूठियां पहने विचित्र और विशिष्ट चरित्र वाली है। अनेक प्रकार के धागों से बने पदम पराग के रंग के पर्दे सुंदर है। श्रीहरि ने विविध रंगों वाले हिंडोरे बादलों को ध्यान में रखकर बनवाए हैं। पास में चारों ओर नाना प्रकार के कमल और अनंत कल्प वृक्ष है। रस के लोभी मोर और कोकिल सुंदर मधुर बोल रहे हैं। सरस वसंत का दृश्य है। घनघोर बादल छाए हैं, धरती ऊंची है, मोर मस्ती में कुदक रहे हैं। वहाँ निर्मल जल के सरोवर में चक्रवाक, सारस और चकोर आदि नाना पक्षी हैं। कंचन के 2 खंभों पर पद्म मेरु मणि लगाकर रुचि पूर्वक निर्माण किए हैं। उनकी मयारी माणिक की है, अत्यंत मनोहर सूर्य की भांति चमक रही है। हीरोए भौरों का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। मध्य में नीलमणि शोभित है, मनोहर मरुए रत्नों से अलंकृत हैं। सुंदर सही किले लगी हैं। बीच में परम सुंदर लाल डांडी विश्वकर्मा ने सजाई है। पटुली में 5 पिरोजा मोती और बीच बीच लाल सजाए हैं। हाथ में कमल लिए चंचल नेत्र, चंद्रमा के समान मुख वाले नूतन श्रृंगार किए सुंदर सुडोल श्री हरि झूल रहे हैं। हाथ में बांसुरी श्री गोपीजन मीणा और ताल लिए सुंदर धनुष्य सी भ्रोहों वाली है। किंकनी, कंगन और नूपुर के शब्द सुनाई दे रहे हैं। कोई कोई एकटक ताक रही है। युवतियां हंसकर श्री गोपाल से प्रेम वचन बोल रही है। बिजली चमक रही है, बूंदे झलक रही है, जैसे आकाश से रस टपक रहा है। पपीहा पीयू पीयू मधुर शब्द बोलकर कामदेव का उदय कर रहा है। नवोनिधियां प्रत्येक घर में विलास कर रही है। हिंडोलों का घोष गूंज रहा है। श्री हरि के लिए असुर, सुर एवं देव और नर भी सभी हर्षित है। नारियों का समूह देखकर प्रसन्न है। श्री राधिका जी के संग रमण करने वाले श्री गिरधर विलास का वर्णन श्री कृष्णदास जी कर रहे हैं। વાલા વૈષ્ણવો, આ રીતે હિંડોળાના પદોના ભાવ દર્શન દ્વારા આપણે હિંડોળાના ભાવને સમજ્યા કે આ હિંડોળાના 32 દિવસોમાં કેવો આનંદ ને ઉલ્લાસ હોય છે। વૈષ્ણવો ઉમટી પડતા હોય છે દર્શન માટે અને સેવા પ્રકારમાં પણ ખૂબ જ આનંદ આવતો હોય છે। હવે આપણે શ્રીનાથજીમાં હિંડોળાની વિશેષતા અને શ્રાવણ માસની સેવા ભાવનાનું ભાવ દર્શન કરીશું, જે મેં અગાઉ કરેલું છે। બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। વાલા વૈષ્ણવો, હજુ એક પદ પહેલા લઈ લઈએ। ગુજરાતીમાં ભાવાર્થ આપેલો છે। કાલિંદી બેટીજીના ગ્રુપમાં આવ્યું છે એટલે આ સાથે એડ કરું છું। મલ્હાર મંગલા દર્શન કે પદ। आज मैं देखे कुंवर कन्हाई, प्रात समय निकसे गायन संग श्याम घटा जुरी आई। पीत वसन पहरे तन सुंदर कसुंबी पाग सुहाई। मुक्ता माल रुरत उर ऊपर मुरली मधुर बजाई। कहा कहो अंग अंग की शोभा मोह पे बरनी न जाई। श्री विठल गिरिधर देखे ते क्यों हूँ कल न पराई। भावार्थ, મલ્હાર મંગલા દર્શનનું કીર્તન શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરધર છાપનું ગંગાબાઈ રચિત છે, જે શ્રી ગુસાઈજીના અનન્ય સેવક હતા। પ્રભુ સવારે તેના સખાઓ સાથે ગાયો ચરાવવા વનમાં પધારે છે। તે સમયે ગંગાબાઈને જેવા દર્શન થયા તેનું વર્ણન આ કીર્તનમાં કરે છે।
સવારમાં પ્રભુ તેના સખાઓ સાથે ખીરક એટલે કે ગૌશાળામાંથી ગાયોને લઈને ગોચારણ માટે વનમાં પધારે છે. ત્યારે વરસાદના કાળા ઘટાટોપ વાદળા ચડી આવ્યા છે. ગોપી પ્રભુના દર્શન માટે અધીરી થઈ રહી છે. ગોપીને ત્યારે પ્રભુના દર્શન થયા. ગોપીને પ્રભુના કેવા દર્શન થઈ રહ્યા છે તેનું વર્ણન કરે છે. આપે પીતાંબર ધારણ કર્યું છે, સુંદર લાલ રંગની શિર પર ઢળતી પાઘ ધરી છે. શ્રીકંઠમાં હૃદય સુધી પહોંચતી મોતીઓની માલા શોભી રહી છે. આપ મધુર કર્ણપ્રિય મુરલી બજાવી રહ્યા છે. આપની શ્રીઅંગની શોભાનો સુંદરતાનો હું વર્ણન કરી ન શકું. સહસ્ર ફેણધારી શેષ પણ નથી કરી શકતા, તો હું ક્યાંથી કરી શકું? આપના દર્શન થયા પછી મને ક્યાંય બીજે અન્યમાં ચેન પડતું નથી. ગોપીને દર્શન માત્રથી કનૈયામાં આસક્તિ થઈ ગઈ. આ આસક્તિ અવસ્થામાં જીવ સંસારને બદલે પ્રભુને શોધે છે. ગોપીની જેમ આસક્તિમાં પ્રબળ ભગવત પ્રેમને કારણે પ્રભુથી ઇતર દરેક વસ્તુ વ્યક્તિમાં અરુચિ થઈ જતા અભગવદીય વસ્તુ વ્યક્તિ બધું પોતાને ભક્તિ સાધનામાં બંધનરૂપ જણાવવા લાગે છે. ત્યારે ભક્તની તે અવસ્થાને ભગવદ આસક્તિ કહેવામાં આવે છે. ભગવત પ્રેમ જ આગળ વધીને ભગવદ આસક્તિમાં પરિણમતો હોય છે. બોલો શ્રી वल्लभाधीश की जय। श्रीनाथ जी में हिंडोला की विशेषता। आ वर्णन इंदौरનું પ્રકાશન છે વૈષ્ણવ મિત્ર મંડળ સાર્વજનિક ન્યાસ શ્રીનાથ સેવા રસોદધી પુસ્તકમાંથી લીધેલું છે। प्रथम समस्त पुष्टि मार्गीय मंदिरन में हिंडोला में सिंहासन होय है, यहाँ चौकी आवत है। ताको कारण यह है कि और घर नंदालय के होते हैं। जशोदा जी अपनी गोद में लेके प्रभु को झूलावत है। यहाँ निकुंज नायक गोलोक नायक है और चारों ओर व्रजललना दर्शन करे और झूलावे। भोग समय हिंडोला यहाँ होए है और घरन में संध्या आरती बाद ताकू आशय है व्रजरानी कन्हैया गाय चराए के आई जाए, ताके बाद घैया आरोगाय के झूलावन को जात है तथा उत्सवन में तो शयन भोग आरोगाय के झूलावे ले जाए है। यहाँ व्रज के कुंज निकुंजन में नित्य लीला संवेष्टित किशोर स्वरूप भोग समय झूलकर घर पधारत है। तासो आरती बाद में होते हैं और भोग में हिंडोरा झूलत है। पलना डोल आदि में मदन मोहन जी न पधारे, श्री नवनीत प्रिया जी पधार के झूले सो कहे थे और हिंडोलान में श्री मदन मोहन जी को काय को झूले। એટલે હિંડોલામાં મદન મોહનજીને શા માટે ઝૂલાવવામાં આવે છે ને પલનામાં ને તેમાં શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને શા માટે ઝૂલાવવામાં આવે છે તેનો ખુલાસો કરે છે। ताको आशय यह है कि जगत गुरु वल्लभ महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, जिनके माथे आचार्य जी महाप्रभु के सेवक अच्युतदास जी श्री मदन मोहन जी पधारे और गोपीनाथ जी ने किशोर रस रूप मदन मोहन जी को श्री जी के समीप पधराए। तासो बड़े भाई गोपीनाथ जी के स्वरूप को उनके समय सो हिंडोरा में श्री मदन मोहन जी झूलते होते सो यद्यावधि प्रचलित है तथा नवनीत प्रिया को पधरावे तथा सेवा क्रमादि बंधन श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी ने बांध्यो। तासो एक कालावचीन उभय लीला दर्शन की सेवा बांधी। श्री मदन मोहन जी वेणु धराई झूलत है, वैसे सदा वेणु नहीं धरे। ताको आशय श्री मदन मोहन जी वेणुनाद करत मोहित किए सो मदन हूँ मोहित भयो। तासो आप हिंडोला में झूलत है, संग में श्री बालकृष्ण जी हूँ झूलत है। जब जब बालकृष्ण जी झूलत है तब तक आसन झूला के नीचे आवत है। निकुंज लीला में आसन न आवे, बाल लीला में आवत है। इन मदन मोहन जी के स्वामिनी जी नहीं है। सखी, प्रिय सखी, आली सखी, पृष्ठ सखी, ये 4 प्रकार के सेवक तथा 4 प्रकार की अपरसवारी सखियां श्री जी को झूलाए, चवर करे, सेवा करे। 8 कीर्तनिया कीर्तन करे। सखी शाक घर की अपरस, खासा जल घरिया, रसोई, पोता, फूल घरिया दी। प्रिय सखी परचारगी, अपरस, दूध घरिया, खासा भंडारी, पान घरिया, वारे दोनों परचारक, भोग के परचारक, साक घरिया आदि। आली सखी तातो ठंडा बारो, कोठड़ी बारो, रसोईया तथा भीतरियादी। એટલે કે જે આલી સખી નિત્ય લીલામાં છે તે અહીં શ્રીનાથજીના મંદિરમાં નાથદ્વારામાં તાતો
ઠંડા બારો, કોટડીવાળો, રસોઈયા અને ભીતરિયાદી એટલે એ બધા આલી સખી કહેવાય છે। અહીં તેમની ભાવના આપેલી છે। श्रेष्ठ सखी दोनों मुखिया तथा आज्ञावारे सेवक वर्ग ये सब मिलके प्रभु को हिंडोला में झुलावे, दर्शन करे, चंवर करे। गोविंद स्वामी हो गाय है, ये सेवक 32 होय है। 3 के नाम सेवा कार्य आगे दिए गए हैं। पद या प्रकार होय। मंगला आई जो श्याम जलद घटा, श्रृंगार होते में अभ्यंग के 5 तथा महात्म्य के 6 पद गवे। श्रृंगार सन्मुख में गरज गरज रिम झिम रिम झिम, राजभोग में छाक के सरे पे। देखो माई ठाडे नंद किशोर, राजभोग सन्मुख सखीरी सावन दुल्हे आयो। उत्थापन आज की शोभा कहत न आवे, हिंडोरा झूले भीतर तथा भोग आवे तब वेणु झूले। यही पद 3 दफे गवे। झांझ बजे कमल चौक में सिंह पोल के सन्मुख, हिंडोरो रोप्यो नंद आवास એટલે કે આ હિંડોરા શરૂ થાય છે ત્યારની વાત છે। સન્મુખ ઝૂલે તબ માયરી તે સોઈ સાવન, ઝૂલત રંગ हिंडोरे, राधा आई व्रजनार रंग मच्यो सिंह द्वार। ऊपर वाले ये 4 पद गोविंद स्वामी के प्रथम हिंडोरा में गवे। आरती में छेली तुक गवे। मदन मोहन जी के मंदिर में भीतर पधारे बाद झांझ हिंडोरा आदिवासन से बचे। शयन में 100 सावन आयो, सेन काम की लायो। श्री बालकृष्ण जी 3 दिन तक झूले चांदी के ही हिंडोरा में, तथा जब जब नए हिंडोरा होए तब तब आप झूले। आपको स्वरूप तथा भावना यह प्रकार है। श्री गोसाई जी श्री विठलनाथ जी ने हिंडोला श्री जी में फूलन के किए। बहुरी आप गोपालपुर, श्री विठल द्विजराय। सुमन हिंडोला किन बहु, गिरिधारी मन पाए। अडेल में यह स्वरूप श्री यमुना जी सो आचार्य महाप्रभु को प्राप्त भय। और आचार्य ने अडेल में एक ब्राह्मणी रहती ताके माथे पधराय। वार्ता 49मी। फरी एक बार આજે બાલકૃષ્ણજીનું સ્વરૂપ છે તેની વાત કરે છે। अडेल में यह स्वरूप श्री यमुना जी सो आचार्य महाप्रभु को प्राप्त भयो। और आचार्य ने अडेल में एक ब्राह्मणी रहती ताके माथे पधरावे। वार्ता 49मी। आज वही स्वरूप श्रीनाथ जी के संग यहाँ बिराजे। इनके ही पंचामृत होय। मंडप में बिराजे, हिंडोरा में झूले। श्रीनाथ जी में हिंडोला के 32 दिन झूलवे के तथा व्रजललना 4 युथाधिपान के साथ 8-8 रूप को वर्णन कछु पुराणन में यह प्रकार है। फरी एक बार श्रीनाथ जी में हिंडोला के 32 दिन झूलवे के तथा व्रजललना 4 युथाधिपति के साथ 8-8 रूप को वर्णन कछु पुराणन में यह प्रकार है। पद्म पुराण। गोप्यस्तु श्रुतयो गेया ऋषिजा, गोप कन्यकाः देव कन्याश्च राजेंद्र न मनुष्याः कथंचन। श्रुति रूपा एक समय मूर्तिमान वेदन ने वैकुंठ में प्रभु की बहुत समय स्तुति की। तब प्रभु प्रसन्न भय और वह मांगवे की आज्ञा किए। तब श्रुतिन ने कही, आप कोटि कंदर्प लावण्य युक्त है और हमारो मन काम से क्षुभित होए है। हम कामिनी भाव सो आपकी सेवा करनी चाहे हैं। तब काम पूरक प्रभु ने आज्ञा कीनी, तुम्हारो यह दुर्लभ मनोरथ सारस्वत कल्प में व्रज में पूरो होएगो। ये वही श्रुति रूपा युथ बन्यो। बीजू छे ऋषि रूपा। ये मुनियन ते गोपी भई। भगवान राम दंडकारण्य में पधारे तब आपकी रूप माधुरी सो मुग्ध होय। काम संतप्त वर रूप सो चाहवे लगी। तब वे योग साधन द्वारा गोकुल में गोपियां भई। पूरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्य वासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भक्तुमेच्छन् सविग्रहम्। ते सर्वे स्त्रीत्व मापत्रा
સમુદ્ભૂતાશ્ચ ગોકુલે હરિમ સંપ્રાપ્ય કામેન તતો મુક્તા ભવાર્ણવાસ. પછી ત્રીજું યુદ્ધ છે ગોપ કન્યા. जनकपुर की कन्याएं राम के सौंदर्य को देखकर मोहित भई और अपने जन्म में उनको पति रूप सो चाहती हती. अपनो तन मन धन सब मनसा समर्पण कियो और स्वप्न में जय माला डारी. तब प्रभु ने सारस्वत कल्प में कात्यायनी व्रत उपरांत अंगीकृत करवे की आज्ञा दीनी. वे गोपी गोप कन्या भई. श्री रामस्य वराज जाता नवनंद गृहेषु याहा कमनीयम नंदसोनुम दृष्टवाता मोहमा स्थिता. मार्गशीर्षम शुभे मासी चक्रुहु कात्यायनी व्रतम. આ ગર્ગ સંહિતામાં આનું વર્ણન છે. દેવકન્યા જમનાદી. देवकन्या जमनादी. आकाशवाणी सुन के ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा देवताओं को सुनाई. अपने अपने अंश सो यदुकुल में जन्म ग्रहण कर लीला स्थल सिद्ध किए करे. भवद भीरंशे यदुषप जन्यताम तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः तासो ही यहाँ सब रजललना यमुना युद्ध में प्रकटी. पछी छे तुर्य प्रिया. दिनकर दास ग्वाल के यहाँ सुषमा के गर्भ सो जमनावता में प्रकटी. श्री जमना महारानी एवं अनेक देवकन्यादि सब अंशंसो अवतारित होई ब्रज में पधारी. ब्रज भाषा के पदन में हूँ वर्णन मिले है. ऋषि लाल मुनिन के झुंडन झूलन आई हो हिंडोरे. कृष्णदास रचित पद छे. माई झूले कुंवरी गोपरायन की. गदाधर दास रचित पद छे. हिंडोरोरी व्रज के आंगन माच्यो रसिक प्रीतम की बानिक निरख तरो शंकर तांडव नाच्यो. हरि देव हिंडोरोरी व्रज के आंगन माच्यो शुक सनकादिक नारद शिव ब्रह्मादिक कौतुक भूले शंकर तांडव नाच्यो. शारद मुनिजन हिंडोरो देखन आए नंद को लाल झुलावत देखियो बहुत तूढ़ हम पाए. युवती युद्ध हर्ष चढ़ अपुनो तन मन वारे परमानंद दास को ठाकुर चित चोरियो यह कारे. હવે અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે કે પ્રભુ को જેમની દિશીસો ही झोटा क्यों देत है. તો તેનો જવાબ આપે છે વામ ભાગ વૃષભાન નંદિની को હોઈવે સો જેમની ચંદ્રાવલીજી બન્નીજી ઝુલાવે. સ્વામીજી તો સંગ ही झूले तासो. એટલે અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે કે પ્રભુને જમણી દિશાથી જ હિંડોળામાં જોટા શા માટે દે છે. તો વામ ભાગ વિશ્વાન નંદિની એટલે કે સ્વામીજી વામ ભાગ સ્વરૂપ છે માટે ચંદ્રાવલીજી અને તેઓ જમણી બાજુથી હિંડોળા ઝુલાવે છે. इति श्रीनाथ जी में हिंडोरा की विशेषता. અહીં પ્રશ્નોત્તરી પણ આપેલી છે જન્માષ્ટમીની વધાઈમાં. તે આપણે જન્માષ્ટમીની વધાઈની ભાવના, જન્માષ્ટમી ઉત્સવની શું ભાવના છે નાથદ્વારામાં આપણા સેવામાં, તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે આપણે શ્રીનાથજી સેવા રસોદધીમાંથી શ્રાવણ માસની સેવા ભાવના જોઈશું. એટલે શ્રીનાથજી સેવા રસોદધી તૃતીય તરંગ યુથાધિપા શ્રી સ્વામીની ઠકુરાની શ્રી રાધારાनी સેવા માસ શ્રાવણ ભાદ્રપદ और આશ્વિન એટલે આ 3 મહિનાની સેવા શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવથી કરવામાં આવે છે. એટલે કે તેની મુખ્ય સખી શ્રી સ્વામિનીજી છે. श्रीनाथ जी के कीर्तन के राग. तृतीय तरंग श्रीनाथ जी के कीर्तन के राग. चैत्र कृष्ण प्रतिपदासो अक्षय तृतीया तक के मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग तक भैरव, रामकली, बिलावल, देवगंधार, विभास,
राजभोग सन्मुख में सारंग, यह छाक में हूँ गायो जाय। उत्थापन भोग आरती में नट पूर्वी गौड़ी, शयन में कान्हरा, ईमन, नायकी, केदारा, अडाना, विहाग। अक्षय तृतीया से नायकी राग बंद हो जाए और कल्याण गायो जाए। चैत्र वैशाख से रथ यात्रा पर्यंत ऊपर वारे राग गाए जाए। जेठी पूनम से लेकर रथ यात्रा के पूर्व दिन तक के में राग विशेष में गवे और समय नहीं। सुवा, बिलावल, सोरठ। रथ यात्रा से श्रावण शुक्ल पूनम तक मल्हार राग, हिंडोरा के समय सब राग गवे तथा बधाई में भी सभी राग गाए जाए। पलना में केवल बिलावल एवं रामकली गायो जाए। बाललीला में रामकली, बिलावल, आसावरी, ढाढी तथा राधाष्टमी में सभी राग गवे। अन्य राग भी गवे जैसे आसावरी, देवगंधार, बिलावल, सारंग, जयश्री, मालव, मारू, जय जयवंती, कान्हरा, ईमन। दान में सभी राग गाए जाए। विशेष बिलावल, धनाश्री, खटललित, देवगंधार, विभास, टोडी, सारंग, नट, पूर्वी गौड़ी, कल्याण, ईमन, कान्हरा, केदारा, अडाना, जयजयवंती, विहाग। सांझी में गौड़ी परवी, मुरली में बिलावल, रामकली, खट सारंग, गौड़ी, अडाना, कान्हरा। अन्नकूट में देवगंधार, बिलावल, राजभोग सरे पे गौड़, सारंग भी होय है। नट, सारंग, कल्याण, मालव, ईमन, कान्हरा, अडाना। रास में भैरव, विभास, रामकली, बिलावल, सुधराई, खट, टोडी, आसावरी, सारंग, मालव, पूर्वी, जय जयवंती, नट, मारू, गौड़ी, कल्याण, ईमन, कान्हरा, अडाना, केदार, विहाग। इंद्रमान भंग में એટલે અત્યારે આપણે શ્રાવણ માસનું મુખ્યત્વે જોઈએ છે એટલે એ બધું નથી લેતા સાથે હિંડોરા में अष्टनिधि वर्णन मथुरानाथ जी, द्वारकानाथ जी, बालकृष्ण जी, नवनीत प्रिय के झूला वर्णन यासो नहीं कि ये यशोदत संगलाली तथा कुमार पौगंड लीला के स्वरूप है। 405 स्वरूपन के वर्णन में हिंडोला में कई पद हैं। गोकुलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा जी, विठलेश राय जी, मदन मोहन जी तथा नटवर जी, श्री गोवर्धन धर। विठल राय राग मल्हार। विठल राय लाल गिरिधरन झुलावत सुरंग हिंडोरे। सुंदर वदन निहारत फिर फर चितवन नैना जोरे। अति शोभित सिर पाग संवारी केसर के रंग बोरे। कर्ण फूल अरुचि बक वदन पर झलकत थोरे थोरे। तैसी संगराधिकारानी लागत छबितन गोरे। श्री विठ्ठल गिरिधरन झुलावत जुवतीन के चित्त चोरे। गोकुलनाथ जी એટલે કે જેમાં ગોકુલનાથજીનું વર્ણન આવતું હોય તેવું પદ હિંડોળાનું। बिहारी जुवारी हो सारी संभारू, हाँ हाँ नेक होले होले झूलो। पटली पग ठहराहत नाही, नथ हरात पिडूरी फहरात दुकुलो। टूट्यो हार गजरा गिरी गयो, छूट गई कबरी खसियो शीस फूलो। श्री गोकुलनाथ जू प्यारे तिहारी, संभार नाही न अहो आज हुलो। હવે ચંદ્રમાજીનું ઝૂલે ગોકુળ શ્રી ગોકુલનાથ આલીરી, ઝૂલત ગોકુલ ચંદ હિંડો। ઝૂલત ગોકુલ ચંદ હિંડો રે। ઝૂલવત સબ વ્રજ નારી। शोभित वृषभानंदिनी, पहरे कसुम्भी सारी। पचरंगी डोरी गुहिलीनी, दांडी सर
सवारी। आस करन प्रभु मोहन नागर, झूलत गोवर्धन धारी। ત્યારબાદ મદન મોહનજીનું ઝૂલત ગોકુલ ચંદ હિંડોરે નટવર વેશ કિયે, ઝૂલત મદન મોહન પિય રાજત સંગ રાધિકાલીને। મલ્હાર વર્ણન ચતુર્બુદાસજી को मल्हार। सखीरी देखीरी आजु शोभावन की, इत मोहन मुख मधुर मुरली, उत मधुर गरज नव घन की। उत ही श्याम बादर सोहत, इत राजत सांवल तन की। उत बग पंगति समूह इत ही, हारावली मुक्ता गिरिधर गरे लसन की। इत ही रुचिर बनमाल बनी उर, उत ही रहनी इंद्रधनु की। उत दामिनी चपला चमकती, इत फहरनी पित बसन की। उत गुरवा इत धातु चित्र, रुचि सुभग श्रृंग अंग लसन की। उत बुंदनी द्रुम वेली सिंचती, इत प्रेम निरबर खन की। अति आनंद निरख दो, सुख गावनी विहंगम जनकी। चतुर्भुज प्रभु गिरिधरन, रसिक रस करी बिनती विलसन की। या पद में घन एवं घनश्याम को, ऐक्य एवं वर्षा ऋतु को समस्त परिकर प्रभु की तुलना में सिद्ध कियो है। त्यारबाद परमानंदास जी को पद। देखो माई भीजत रस भरे दो, नंद नंदन वृषभान नंदिनी होड़ परी है जो। सुरंग चुनरी श्यामा जू की, भीज रही रस भारी। गिरिधर पाग ऊपर ना भीज्यो, या छवि ऊपर वारी। बात ही बात होड़ भई भारी, ललिता दिक समझावे। दो मिल झगरत मानत नाही, सखी सब बुंद बचावे। तब मोहन हारे सिरनाए, हंसी सकल व्रज नारी। परमानंद प्रभु यही विधि, क्रीडत या सुख की बलिहारी। હવે નંદાસજી નિવાણીમાં आयो आगम नरेश देश देश में, आनंद भयो मनमथ अपनी सहाय को बुलायो। मोरन की टेर सुनी कोकिला, कुलाहल ते सोई दादुर हिल मिल सुर गायो। चढ़ियो घन मत हाथी पवन, महावत साथी अंकुश वंकुश दे दे चपला चलायो। दामिनी ध्वजा पताका फरहरात, शोभा बाढ़ी गरज गरज धोंधो दमामा बजायो। आगे आगे धाय धाय बादर वर्षत व्यारन की, बहकन ठोर ठोर छिरकायो। हरी हरी भूमि पर बुंदन की शोभा, बाढ़ी वरन वरन रंग बिछोना बिछायो। बांधे है बिरही चोर किनी है, जतन रोर संयोगी साधन सो मिल अति सचुपायो। नंददास प्रभु नंद नंदन के आज्ञा करी, अति सुखकारी ब्रजवासी न मन भायो। कृष्णचंद्र नायक को अभिसार सुर की वाणी में। भीजत आएगे हलाल माई, भीजत आएगे हाथ लकुटिया कामर खोई, खुंदत की जसनेह भीजत आएगे। निसी अंधियारी हाथ नहीं सूझत, पवन झकोरत में सूरदास दामिनी के दम के, लखी सांवरो देह लाल माई भीजत आएगे। कुंभनदास जी को पद। देहो कान्ह कांधे को कंबर, रिम झिम घन बरसत है, भीजे कसुम्भी अंबर। घन गरजत डरपत हो मोहन, देख मेघ के डंबर।
कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर साथ ग्वाल को संभर। श्री स्वामी जी को पद। एरी यह नागर नंदलाल कुंवर मोरन संग नाचे, कटी तट पट किंकिणी कलनूपुर रुन जुन करे नृत्य करत, चपल चरण पात घात साचे, उदित मुदित सघन गगन घोरत, घन दे दे भेद कोकिला कल गान करत, पंचम स्वर वाचे। चित स्वामी गोवर्धन नाथ साथ विहरत वर विलास, वृंदावन प्रेम वास याचे। गोविंद स्वामी जी को पद। ओन हर चहु दिसते घन घोरे, आई जो श्यामा चलत घटा, दंपति अति रस रंग भरे, बाह जोरी फिरत कुसुम बीनत कालिंदी तटा। नन्ही नन्ही बुंदन बरखन लाग्यो, तैसे ही चमकत बीज छटा। गोविंद प्रभु प्रिय प्यारी, उठ चले ओढ़े लालपट दौर लियो, जाय बंसी बटा। હવે કૃષ્ણદાસી કો પદ। ब्रज पर श्याम घटा जुरी आई, तैसे दामिनी चहु दिस कौंधत लेत तरंग सुहाई। सघन छाह कोकिला कूजत, चलत पवन सुखदाई, गूंजत अलिगन सघन कुंज में सौरभ की अधिकाई। विकसित श्वेत अक्षर देखाता नहीं। नवनागरी गिरिधरन छबीलो, कृष्णदास बलि जाई। जन भगवान की रूप माधुरी घटा श्री स्वामिनी जी पर। राधे रूप की घटा पोषत, चातक मदन गोपाले। दामिनी वारो दसनन ऊपर, छूटी अलकन पर धुरवा वारो। भगत पंकति मुक्ता माले, इंद्रधनुष पचरंग सारी पर, वार डारो और यावक पर बूढ़न लाल। जन भगवान मदन मोहन पर, तन मन पिकवारू, सुनी सुनी वचन रसाल। वृंदावन चंद की मल्हार। अंग अंग घन कांति, मोती माल बग पांति, इंद्रधनुष वन माल शोभा छिन छिन है। दामिनी दमक पीतांबर की, चमक मुरली की, घोर मोर नाचे रैन दिन है। वृंदावन चंद रिजे रिजे, मोर दीजे कहारी चहु न दीजे, रिजे को न गिन है। धरती ते चंद्रिका लीन, गिरधारी हंस बोले, नाथ मोर तेरो ऋण है। હવે અહીં પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે कि श्रीजी में नित्य नियमित श्रावण में ही दीवालगिरी, चंदवा, तेरा, वंदनमाल फिरती आवे तथा और दिन क्यों ना आवे? तो तेनो जवाब आपे छे, राधा रानी स्वामिनी कुंजेश्वर की रानी आदि आपके स्वरूप है और आप राज राजेश्वरी ठकुरानी है। तासो आपकी सेवा क्रम में राजलीला तथा वैभव आदि सो युक्त होवे सो। जब जब भी आपकी प्रधान सेवा आवे तब तब दीवालगिरी, चंदवादी आवे। जैसे राधाष्टमी, दिवाली इन दिनन में तथा श्रावण के 32 दिन ताई आवे। या सेवा क्रम को बंधान पूज्य स्वनाम धन्य श्री विठ्ठलवर गुसाई जी ने प्रारंभ कियो। तासो स्वामिनी भाव में वल्लभ कुमानी के सर्व सुख राजकीय वैभव के साथ आपकी सेवा राखी। राजत गिरिधरन संग राधिका रानी तथा आज बनेरी कुंजेश्वर रानी। सूरदास ने हो वंदना में लिखियो है, जगनायक जगदीश पियारी, जगत जननी जगरानी, नीत बिहार गोपाल लाल संग वृंदावन रजधानी। सो ब्रजेश्वरी राधा रानी वृंदावन राजधानी की रानी की सेवा हो वही राजकीय वैभव से होवे। श्रीमद् भागवत में हो चंदवा दिवालगिरी आदि को वर्णन द्वारका लीला में 2 स्थानन में तथा मथुरा लीला में 1 स्थान में मिले हैं। ब्रज में तो राजलक्ष्मी पायन में लौटती रही है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही, यह भाव सो चंदवा दिवालगिरी तेरा आदि है। मथुरा के राजप्रासाद वर्णन 9वें स्कंद में, राम राज्याभिषेक वर्णन में जुष्टेशु, जाला, मुखरंद्र, कुट्टी, मेश्वाविष्ट,
पारावत बर्ही नादिता तथा द्वारका लीला में प्रासाद वर्णन रुक्मिणी भवन आदि मिले हैं। तस्मिन्नंतर गृहेर्भ्राजन मुक्ता दाम विलंबिना तथा पारिजात वनामोद वायुना धान शालिना। आगे नारद जी को गृहस्थ दर्शन में राजभवन में दिखाए। विश्व श्रब्दम विद्रुम स्तंभे वैदुर्य फलकोत्तमे ब्रज साहित्य के कवियन के वर्णन में। कृष्णदास रोप्यो हिंडोरना नंद गृह शुभ करी देख। कृष्णदास के पद में गोपी गोविंद के सुरंग हिंडोरना झूलन आई। सूत्र चहुदीश रचित परदा पद्मराग सुरंग घनी हेत हरि हिंडोल शाला रचि विविध तरंग। परमानंद दास रचित पद गोपी गोविंद के गुण विमल परम हित गावे गीत। तहाँ होत मंगल घोष घर घर जहाँ रमा अनंत। वैकुंठनाथ दयाल श्रीपति सोहे श्री भगवंत। अतः रमा यानी लक्ष्मी की राज वैभव भी तुच्छ होवे सो दीवालगिरी चंदवा पंखा झालर वंदनमाल तेरा पर्दा आदि शुभ्र शैया बिछात ये सब श्री स्वामिनी जी की सेवा में निहित करी। असंख्य सेवक परिचारिकांसो राग रंग रसधार भोग राग श्रृंगार आदि सो सजावट बिछावट तथा भीतर सब साज आवे। ये 32 दिन आवे और दिन स्वामिनी जी की सेवा के नहीं। दिवाली राधाष्टमी तथा श्रावण ये 3 समय ही सेवा हुई। श्रावण भाद्रपद अश्विन ये 3 मास श्री स्वामिनी जी श्री राधा जी श्री लाडीली जी की सेवा के होवे से सेवा क्रम लिख्यो जाए है। श्री जगत गुरु वल्लभ महाप्रभु जी ने तो बाल गोविंद यशोदोत्संग लालित कृष्ण जी की सेवा करी के बाल भाव सो ही प्रभु सुख देखी सेवा भावना सिद्ध करी। जगत गुरु वल्लभ महाप्रभु के द्वितीय कुमार श्री गुसाई जी विठलनाथ जी ने कांता भाव एवं बाल भाव स्थिर करी अष्टयाम अष्टनिधि अष्टसखा की स्थापना करे के स्वामिनी वत जगत गुरु को मानी सेवा प्रकार तथा ग्रंथ आदि प्रणयन कीनो। सो या प्रकार है। राधा प्रार्थना चतुश्लोकी। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिकमा कृपा निधे स्वप्रिय चरण किंकिरी कुरु। संविधाय दर्शने तृणम विभो पार्थये व्रज महेंद्र नंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनी मदीश्वरी प्रिया। અહીં જે આ સ્તોત્ર છે સામાન્ય સુધી ચતુષ્ટયના આપણે આખા વિથ લિરિક્સ આપને અમારી ચેનલમાં મળી જશે। જો યાદ આવશે તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક જરૂરથી આપીશું। સ્વામિની અષ્ટક ન મે ભૂયાન મોક્ષો ન પુનર મરાધીશ સદનમ ન યોગો ન જ્ઞાનમ ન વિષય સુખમ દુઃખમ કદનમ ત્વદુશ્ચિષ્ટમ ભોજ્યમ તવ પદજલમ પેયમપી તદ रजो मूर्धि न स्वस्मिन्य नो सवन मस्तु प्रतिभवम। स्वामिनी स्तोत्रम विविध बंध रतिश्रम सिकरा कुल कपोल मुदीक्ष्य हरिम यदि स्मरसि मां व्यजनार्थमपि क्षणम सुमुखी धन्य तवास्मि तदाह्यघम। स्वामिनी प्रार्थना या में जप होम स्वाध्याय तर्पण आदि को संकेत है। श्री राधे प्रियतम दृक् संगम संजात हास दृक् सलिले ही भवदीये स्नानम में भूया सततम न पाथोभिः भूयान में व्यवहार स्तावक तांबूल चर्विते नैव पानम करुणाकुतः स्मितावलोकामृते नैव त्रिवणमिह भवदंघ्रि प्रणतिः संध्या प्रकृष्ट दैन्येन जपस्तु ताप क्लेशे विगाढ भावेन कीर्तनम नाम्नाम् अस्तंगच्छ स्तूर्यो शुशुक्षणो दिवस दुख होमोस्तु त्वत्पृष्ठ प्रिय वार्ता कथनम में ब्रह्म यज्ञोस्तु भवतीनां प्रिय संगम संजात मनो महोत्सवे क्षणतः तर्पणमिह सर्वेन्द्रिय तृप्तिर्भवतान् मनोरथाप्यत्यामे इत्थं जीवनमस्तु क्षणमपि भवदंघ्रे विप्रयोगे तु
મરણમ ભવતા દેવમ ભાવે શરણમ ત્વમેવ ભવ. ત્યારબાદ હરિરાયજી મહાપ્રભુ કૃત રાધાષ્ટકમ આ પણ આપને અમારી ચેનલમાં હરિરાયજી મુક્તાવલીમાં મળી જશે ને સ્તોત્ર પાઠમાં પણ મળી જશે. પૂરા રાસારંભે શરદમલ રાત્રિ સ્વપી હરિ પ્રભાબોધ લીલા સ્મરણ કૃત ચિંતા શતયુતામ હૃદય પ્રાદુર્ભૂતમ બહિરપી સમુદ્વીક્ષિતુમિવ સ્વતો વારંવારં વિકસિત દૃગ્જારુદિ ભજે નમે વાંછા મોક્ષે શ્રુતિષુ ચતુરાત્મા નિગદિતો ન શાસ્ત્રીયા ભક્તિર્ન પુનરિહ વિજ્ઞાન યમિમે કદાચિન્મા સામિન્યઃ મયી દાસે કૃપયતુ સ્વતઃ સ્વચાર્યાણા. ચરણ શરણે દિન કરુણા. હરિરાયજી કૃત મુખ્ય શક્તિ સ્તોત્ર. આ સ્તોત્ર હરિરાયજી મુક્તાવલીમાં છે. જયતિ સદાય નામ સ્વયં નિકુંજ સ્થિતો નાશઃ મંત્રમિવ પ્રાપ્ત્યર્થ સા જયતિ સ્વામિની રાધા ભાવતનો ભાવાત્મા સ્થિતા સ્વભાવેન ભાવિતા સતતમ શ્રી वल्लभाभिधाने तद्रूपा वा सदा जयति. यह श्लोक में श्री हरिराय महाप्रभु ने स्वामिनी रूप में श्री वल्लभ को मानी के नमन कियो है तथा सेवा में हूँ वल्लभ की प्रधानता बताई. या सो ही श्रावण भाद्र अश्विन की सेवा इनसो रचित बताई है. स्वामिनी प्रार्थना. स्वाधीन गोपी जन वल्लभाय निसाधनानुग्रह कारणायाः सुधारस प्रापितः मत प्रभोः स्याम कदा तवाहं पद पांसु जन्मा. अंत में प्रार्थना. इति श्रीमत् स्वामिनी नितिशयत दिने मयि परम पराधीने पिने खिल भजन दोषेरपि सदा कृपा कार्याधार्यारुदि च मम चित्तं मुररिपु प्रिय स्वाचार्याणां चरण शरणोहम हरिमरतिः. आचार्यन की यही भावना से प्रेरित है कि व्रजभाषा साहित्य में अनेक भक्तन ने राधिका, स्वामिनी, लाडीली, प्यारी, किशोरी, वृषभान नंदिनी, लली आदि नामन सु युगल स्वरूप को अंग सौष्ठव श्रृंगार आदि के साथ नित्य लीला आदि वर्णन कियो है. उदाहरण अर्थ. सूरदास जी की वाणी में प्रातः समय नवकुंज महल में श्री राधा अरुनंद किशोर. परमानंद दास की वाणी में बैठे लाल कालिंदी तीरा ले राधे गिरिधर दे पठ्यो यह परसादी बीरा. कुंभन दास. ले राधे गिरिधर दे पठही अपने मुख की सुंदर बीरी. नंददास. नंद भवन को भूषण माई जशुदा को लाल विल हरधर को राधा रमन सदा सुखदाई. गोविंद स्वामी. राजद गिरिधरन संग राधिका रानी. कृष्णदास. पौढ़े राधिका के गेह. नंददास. चापत चरण मोहन लाल. पलका पौढ़ी कुंवरी राधे सुंदरी नव बाल. हरिराय जी. पौढ़े श्याम राधे संग. सूरदास जी. पाछे ललिता आगे श्यामा प्यारी. नंददास. लाडीली ने मनाए लाल आप पाँव धारो. वल्लभ यानी गोकुलनाथ जी की वाणी में बैठे हरि राधे संग कुंज भवन अपने रंग. प्यारी जब गह्यो बिन सकल कला गुण प्रवीण. चतुर्बुदास जी. गोवर्धन गिरी सघन कंदरा रैन निवास कियो पिय प्यारी. हरिराय जी. सेन काम की लायो सो सावन आयो काम नृपति वृषभान नंदिनी रसिकराय वर्षायो. परमानंदास. धन धन लाडीली के चरण अति मृदुल सुगंध शीतल कमल कैसे वरन नकचंद चारु अनुपराजत ज्योति जगमग करन नुपुर पुनित कुंज बिहरत परम कौतुक करन. नंद सुत मन मोदकारी सूरत सागर तरन दास परमानंद छिन छिन श्याम ताकी सरन. हरिराय जी. बरसाने वर सरोवर प्रकट्यो अद्भुत कमला सूर. कृष्णदास जी रचित. महारस पूरन प्रकट्यो आन कृष्णदास जवते राधा भूतल प्रकटी विधि को मान हन्यो. परमानंदास जी. अमृत निचोय कियो इकठोर. गोविंद स्वामी. राय गिरिधरन संग राधिका रानी आज बनी कुंजेश्वर रानी. कुंभनदास. न्याय ऋतु अलक लड़ी
कुंभनदास स्वामिनी श्री राधा है व्रज युवती न मांझ बड़ी। श्री स्वामिनी जी राधा जी की सेवा के ये 3 मास है। तासो ही 40 दिन पर्यंत झांझ बजे, बधाई गवे और प्रिया प्रीतम की अंतरंग लीला के दर्शन हुए हैं। या की परिसमाप्ति में महाभोग आवे। वैसे चारों युथन में चंद्रावली जी एवं आप बराबरी की होवे। वसंत के 40 दिनन में भी झांझे बजे। हवे आवे छे श्रावण मास, એટલે હવે આપણે આ શ્રાવણ માસના 32 દિવસ હિંડોળા ઝૂલે તેની શું ભાવના છે, ક્યાં હિંડોળા ઝૂલે તે બધું આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। તેમાં આપણે લખીશું કે શ્રીનાથજી સેવા રસોદથી શ્રાવણ માસ હિંડોળાની ભાવના। ખૂબ સુંદર આ પુસ્તક છે। આ બધા દિવ્ય શંખનાદના વિડીયોઝ જોતા હશો, તેમાં જે ભાવના દર્શાવવામાં આવે છે તે આ પુસ્તક શ્રીનાથજી સેવા રસોદથી માંથી જ કહેતા હોય તેવું મેં ઘણીવાર નિરીક્ષણ કર્યું છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આરતી રાધિકા રમણ की આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। શ્રાવણ સુદ પાંચમ નાગપંચમી સંધ્યા આરતી મોતીની તરહના હોદની આરતી। होद नाग पंचमी श्रावण सुद पाचम। श्री यमुना जी वर्षा ऋतु में ऊंचे वेग से बहती हैं। जब उनका वेग कम हो जाता है तब श्री यमुना जी दूर बह करके निकलती है। आसपास कहीं बड़े जलाशय, गहरे वाले जल के जलाशय रह जाते हैं। उनका जल गहरा होता है लेकिन प्रवाह नहीं होता। उसी स्थान को रुद कहते हैं। रुद से व्रज भाषा में होद बना है। इसमें कालिय नाग रहते थे। कालिय नाग की लीला का मुख्य तात्पर्य अधम जीव पर कृपा करना है। नाग संसार को कहते हैं। कालिय नाग के 11 मस्तक हैं। इन सब मस्तकों के मुख में संसार रूपी विषय विष है। ऐसे विषयी को भगवत कृपा मिलना असंभव है। लेकिन भोग भोगते हुए भी विषय विष में उलझे रहने पर भी श्री यमुना जी का संपर्क जाने अनजाने बना रहा तो कालिय नाग के मस्तकों पर चरण चिन्ह विराजमान हुए। श्री कृष्ण के बार में कर्तुम शक्यम, अकर्तुम शक्यम, अन्यथा कर्तुम शक्यम सामर्थ्य का वर्णन है। यहाँ श्री कृष्ण ने अन्यथा कर्तुम शक्यम समर्थ से कालिय के ऊपर कृपा की है। श्री महाप्रभु जी ने कहा है, पायोर मलांश त्यागे न शेष भागम तन्वनयेत। मल और मूत्र की इंद्रियों को छोड़कर शेष इंद्रियों का देव सहित प्रभु में संबंध स्थापित करे। कैसा भी शुद्ध जीव हो उसकी 9 इंद्रियां ही प्रभु अंगीकार करते हैं। लेकिन इसके भाग्य का क्या कहे जिसके 9 की जगह पर विषय विष भरे इंद्रिय रूप फेणों के ऊपर आह्लाद भाव से नृत्य मुद्रा में श्री चरण पधराए। यह कालिय नाग का जीवन चरित्र विषय जीव और निसाधनता का स्वरूप है। उसका भी साक्षात भगवत संबंध है। नाग पंचमी के दिन होद की आरती निसाधन भक्तों के भाव से आती है। इसलिए कहा है, अपनो दोष विचार सखीरी उनसो कछु न कहिए, कृपा तो लालन जो की चाहिए। विशेष पुष्टि मार्ग की भगवत लीला में 5 नाग का संपर्क सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल पधारे, शेष की छाया। बीजू वन में बछड़ा चराने पधारे, अजगर। त्रीजू कालिय नाग के 2 रूप, एक रमणक द्वीप में निवास करने वाला संसारी और विषयी, दूसरा यमुना के जल में भगवत चरण चिन्हों से युक्त अलौकिक और निर्विषयी। चौथू देव यात्रा से लौटने के बाद नंदराय जी के चरण पकड़कर ग्रसने वाला अजगर। इसमें पहला नाग मथुरा से गोकुल आने वाला दिव्य और अलौकिक है। एक दिव्य के साथ शेष सब लौकिकों का उद्धार हो जाता है। इसलिए नाग पंचमी की यह आरती निसाधन भक्तों से है। 5 नाग की कथा से पंचमी का नाम चरितार्थ हुआ। इस दिन श्री ललिता जी का जन्म है। उनके आशय से भी यह होद की आरती है। पवित्रा मूल रूप से ब्रह्म संबंध और पंचाक्षर मंत्र का यह जन्म दिवस है। इस दिन स्वयं श्री ठाकुर जी ने यमुना पुलिन पर श्री गोकुल
ठाकुरानी घाट पर ब्रह्म संबंध मंत्र श्री महाप्रभु जी के लिए प्रकट किया। इस दिन की आरती 2 चतुष्कोण मिलाकर अष्टकोण की है। इसमें सबसे मध्य का जो स्वस्तिक है वहाँ श्री महाप्रभु जी विराजमान है। 8 कोण 8 दिशाओं से ब्रज के आगमन के 8 दरवाजे हैं। ऊपर और मध्य में कुलकु से जुड़े 4 और 4 मिला के 8 स्वस्तिक 8 कुंज के स्थान रूप है। रहस्य यानी एकांत, वसुधा, विशद, विचित्र, रंगद, अमित कला, रसद, अमृत कुंज। शेष 4 स्वस्तिक 4 स्वभाव वाले भक्तों के स्थान है, राजस, तामस, सात्विक, निर्गुण। यूं तो श्री महाप्रभु जी के और श्री गुसाई जी के लक्षावधि सेवक है, लेकिन 84 252 विशेष अनुग्रहित है। इन अनुग्रहित भगवदियों के भाव से पुष्टि वैष्णवों के यहाँ प्रभु जैसी तैसी सेवा स्वीकार करे और सदा सुखित विराजे। अतः यह आरती श्री महाप्रभु जी की तरफ से श्री यमुना पुलित पर श्री ठाकुर जी की है। विशेष श्री गोकुल ठाकुरानी घाट शास्त्रों में अधिवन माना गया है। इसके प्रमुख नायक देवता श्री गोकुल चंद्रमा जी हैं। यही श्री महाप्रभु जी के सामने प्रगटे थे और श्री महाप्रभु जी ने इनको श्री गोकुल चंद्रमा जी के नाम से पहचाना है। अब से पहले श्री गोकुल चंद्रमा जी का ध्यान करने का मंत्र ओम क्लीम गोकुलाधि वनाधिपाय गोकुल चंद्रमसे स्वाहा। इससे श्री बालकृष्ण लाल के दर्शन मिलते हैं। यह सांडल्य ऋषि का प्रकार है और बौधायन संहिता में इसका प्रमाण है और बृहद गौतमी संहिता का उसमें प्रमाण है। ત્યારબાદ છે પવિત્રા એકાદશી, શ્રાવણ સુદ 11 પવિત્રા એકાદશી। રાજભોગ આરતી મોતીની પવિત્રાની આરતી। પવિત્રા શ્રી વિઠ્ઠલેશ પહેરાવત વ્રજ નરેશ गिरिधरन चंद्र को निरख निरख सचुपावत कुमकुम तिलक ललाट दिए नव व्रज जन मंगल गावत बाजत ताल पखावज बीना सुन चहु दिशते धावत हरख हरख अवलोक वदन छवि निरंजन उतावत गोविंद प्रभु गोवर्धन वासी चरण कमल बुरलावत। श्री विठ्ठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को पवित्रा धराते हैं। पवित्रा धराने के बाद ब्रज के राजा श्री गिरधर जी के मुख चंद्र को देखते करके सुखी होते हैं। मुख चंद्र पर कुमकुम का तिलक करके दर्शन करने के समय प्रचंड मंगल गान कर रहे हैं। उस समय हाथों से ताल और पखावज और बीना की धुन चारों तरफ से सुनाई दे रही है। बार बार प्रसन्न होकर मुखारविंद की शोभा को देखकर आरती उतार रहे हैं। गोविंद स्वामी कहते हैं कि उस समय समस्त गिरिराज तरेटी निवासी अपने अपने हृदय में प्रभु के चरणारविंद का ध्यान कर रहे हैं। श्रावण सुद 12 पवित्रा 12 राजभोग आरती मोतीनी पवित्रानी आरती। पवित्रानी आरती पवित्रा 12 आरती में गुप्त रूप से 5 स्वस्तिक है। इन स्वस्तिक में से प्रकट 5 कमल है। विशेषता यह है कि स्वस्तिक में से कमल का प्राकट्य है। स्वस्तिक कल्याण का स्वरूप है। यह 5 कल्याण के स्वरूप पुष्टि मार्ग के 5 तत्व है। श्री ठाकुर जी, श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, दामोदर दास हरसानी जी और गुरु और भगवदियन, इन 5 से पुष्टि मार्ग बना है। जैसे 5 तत्वों से देह बनता है वैसे ही 5 तत्वों से पुष्टि मार्ग बना है। यह आज के दिन की आरती पुष्टि मार्ग जो स्वयं स्वरूपात्मक है उसकी तरफ से है। इसमें अन्य 4 स्वस्तिक प्रकट विराजते हैं। वह भक्ति मार्ग के व्यू स्वरूप है जो पुष्टि मार्ग में भावना प्रकट करने में मूल कारण है। श्रीमद् भागवत के प्रमाण से भावना शब्द का प्रागट इन्हीं 4 नामों से आरंभ हुआ है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। यह आरती भी पुष्टि के रस स्वरूप श्री महाप्रभु जी के तरफ से है। शोभा रसमय भाव प्रकट करे श्री वल्लभ वर देहम। ત્યારબાદ હિંડોળા અષાઢ વદ એકમથી હિંડોળા બિરાજે। શ્રાવણ વદ બીજ હિંડોળા ઉતરે। શ્રાવણ સુદ 13 સંધ્યા આરતી મોતીની બગીચામાં હિંડોળાની આરતી। श्री ठाकुर जी वन में वज्राचरा ने पधारे तो वन में विविध प्रकार के खेल खेलते थे। उनमें कभी दो बालक अपने दोनों हाथों में हाथ मिलाकर खड़े होते और श्री ठाकुर जी इन दोनों मिले हुए हाथों पर बिराजते और गोप बालक उन्हें झूला की तरह झूलाते थे। सायंकाल को ब्रज गोपियां अपने बालकों से पूछती कि आज आपने कौन से खेल खेले हैं। तब
ब्रजगोपों ने ऊपर लिखे भाव वाला खेल बताया। यह सब सुनकर अपने घर में ब्रजगोपियों ने हिंडोला स्थापित किया और वर्षा ऋतु में श्री ठाकुर जी हिंडोला पे घर घर बिराजे। यह हिंडोला 3 प्रकार से है, एक तो नित्य का, दूसरा उत्सव का। जो हिंडोला है उसकी अधिकारिणी श्री स्वामिनी जी है। मनोरथ का जो हिंडोला है उसमें सभी गोपीजन है और पूरा व्रज है। इसकी जो आरती है वो मातृभाव से, कांत भाव से, अपनेपन के नाते और सभी भावों से आरती होती है। हिंडोला की स्थापना में रक्षाबंधन के दिन और हिंडोला के विजय के दिन मातृभाव प्रधान है। हरियाली तीज के दिन कांत भाव प्रधान है। हरियाली अमावस के दिन भी कांत भाव प्रधान है। मनोरथों के हिंडोला सखियों के भाव से हैं। शयन के हिंडोला और मंगला के हिंडोला मंजरी और दासियों के भाव से हैं। सोने का हिंडोला स्वतंत्र श्री स्वामिनी जी के भाव से है। सुरंग हिंडोला श्री यमुना पुलिंद जी के भाव का है। मचकी का हिंडोला परस्पर स्पर्धा के भाव का है। इसमें यमुना पुलिंद, गोवर्धन, नंदराय जी का घर, बरसाना, गहवर और निकुंज के भावों से सूखा मेवा, लीला मेवा, टोकरी, फूल का, पत्ताओं का, सब प्रकार के मणियों का, केसर का, इलायची का, पवित्रा का आदि और भी प्रकार के होते हैं। कांच का हिंडोला स्वतंत्र भावना का है। कीर्तन झूलन तेरे नयन हिंडोले। इस हिंडोले के दर्शन रास की तरह से गुप्त अधिकार है। प्रिया प्रीतम को एक दूसरे के नेत्रों में हिंडोला के दर्शन होते हैं। वह कांच या मणि का हिंडोला है। लीला फल का हिंडोला स्वरूप भावना से होते हैं, क्योंकि फलों की उपमा अंग कांति से की जाती है। यह श्री स्वामिनी जी के मनोरथ का हिंडोला है। वास्तव में यह सूरत कामदेव हिंडोला का भाव है। कहो तो सूरत हिंडोले तुम्हें झुलाऊं। इस हिंडोला में आरती हिंडोला की ही होती है। ही यानी हिय हृदय, डोला यानी स्नेह सूत्र। प्रिय प्रीतम के हृदय एक दूसरे के अदृश्य और बारीक स्नेह सूत्र से बंधा हुआ है। दोनों का हृदय एक दूसरे की तरफ बढ़ता है, फिर वापिस पीछे हट जाता है। यह माधुर्य भाव है, जो कि बालकपन बीतने पर, किशोर अवस्था प्रारंभ होने पर, जब कामदेव थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, उसमें चाहनावश कभी आगे बढ़ते हैं, लज्जावश कभी पीछे हटते हैं। उसी भाव से हिंडोला का तात्पर्य है। किसी खास दिन की घटना घटती है तो घटा के मनोरथ है। कभी गहरा प्रेम हुआ, श्याम घटा। कभी मिलने में विलंब हुआ, पीली घटा। कभी मिलने में नितांत एकांत मिला, लाल घटा। कभी मिलने में पुनः मिलने का आश्वासन मिला, हरी घटा। ओहो हमारा वाला। इस लीला में हिंडोला श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी का स्वरूप होता है। इसीलिए हिंडोला की आरती मातृभाव और कभी गोपीजनों के भाव से है। लेकिन हरियाली तीज, हरियाली अमावस की आरती श्री यमुना जी के भाव से है। श्री यमुना जी का स्वरूप यहाँ पर चतुर्थ प्रिया का है। सोने का हिंडोला सोने का है, लेकिन स्वामिनी जी के स्वरूप को देखकर उसमें सुवर्ण आभा प्रकट हुई। यह घटना कभी कदाच घटती है, इसलिए इसमें स्वयं श्री स्वामिनी जी वर्ष में एक बार ही बिराजते हैं। चंदन का हिंडोला श्री गोवर्धन की तरेटी और पुलिंदियों के भाव से है। सन्मुख में जो बड़े दर्पण की जो भावना होती है, लोग लज्जावश एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं। दर्पण में सन्मुख दृष्टि के माध्यम से चाह भरे भाव और कोप बाणों का आनंद लेते हैं। मेरी और मोहनी की बातें मैं जानूं या वो जाने। दर्पण भी नम्रता का सूचक है। दर्प यानी अभिमान और हण यानी मोक्ष। अभिमान की मोक्ष होने के बाद विनीत दशा बचती है अथवा अतिशय नम्र भाव। हिंडोला की जब स्थापना होती है तो उसमें चंदन के थापे या लकीर लगाई जाती है। यह पूर्ण कामता का सूचक है। इस लीला में भागीदार सभी गोपीजन पूर्ण काम है। हिंडोला के एक खंभा में रेशमी वस्त्र या रुमाल बांधने की रीत है। यह श्री यशोदा जी अथवा मुख्य अथवा प्रधान स्वामिनी जी की उपस्थिति का सूचक है। जिस दिन जिस भाव का हिंडोला होगा, उस भाव वाले गोपीजनों की तरफ से आरती होती है। झूले हिंडोरे सांवरो वाकी शोभा बरनी न जाय ललना। यमुना तीर सुभग कुंजन में रच्यो है हिंडोरा आय। कंचन के द्वे खंभ बिराजत डांडी चार सुहाय।
चौकी खचित है 5 पिराजा, हीरा रत्न जड़ाए, पटुली हेम जड़ाव की जोरी लाल बनाए, दादुर मोर पपैया बोले, थोड़ी थोड़ी बूंद सुहाय, गुरु गुरु ते सब सुंदरी चली, देखन नंदलाल, निरख निरख मुख देत चोटी का पुष्पन वृष्टि कराय, आरती करत यशोदा मैया मोती न चौक पुराय, चतुर्भुज प्रभु गिरिधर लाल को श्री राधा झुलावन आये ललना। सब सखियां एक जगह एकत्रित होकर के आपस में एक दूसरे से वर्णन कर रही है। हे ललना, सांवरो कन्हैया हिंडोरा पर झूल रहे हैं, वह शोभा वर्णन से बाहर है। श्री यमुना जी के किनारे अति शोभायमान कुंजन में हिंडोरा बनायो, वह हिंडोरा में अरे ललना सोने के 2 खंभ विराजमान किए, सोने की हिवा में 4 डांडी लगाई, और हुसुनो ललना हिंडोरा की चौकी पिरोजा की जड़ी भई और हीरा हुआ में जड़वाए। देखो ललना, वहां में बिराते की पटुली यूं तो सोने की थी, पर वहां में लाल रंग के नग जड़वाए। और हूँ कछु समझो ललना, वह हिंडोरा के आसपास दादुर मोर पपीहा बोल रहे थे, और वही समय थोड़ी थोड़ी सुहावनी बूंद पड़ने लगी। अरे ललनाओ, अपने अपने घर से सब सुंदर बाला व नंदलाल को देखवे चली, और देख देख कर श्री मुख की शोभा निहार कर फूलन की वर्षा करवाई। ललना, वह समय यशोदा मैया ने खबर पा करके यमुना पुलिन पर सुबह कुंजन में मोतीन के चौक पुरवाए, और स्वयं आप पधार के आप आरती करी। चतुर्भुजदास जी यह लीला को देख के कहते हैं कि उस समय पर सुबह कुंज में लालन को झुलाने के लिए श्री राधिका जी पधारी थी, अतः आरती करने यशोदा जी पधारी। हिंडोरा के पदों में ज्यादा नहीं, कुछ एक ही है। उन पदों की प्रत्येक अंतिम कड़ी में ललना शब्द का प्रयोग है। असल में यह भागवत में वर्णित वेणुनाद का दूसरा पहलू है। जैसे वहाँ वेणुनाद में श्री ठाकुर जी के वेणु धारण किए हुए स्वरूप सुधारस का वर्णन एक दूसरी सखी से सखी संबोधन करके किया है, ऐसे ही यहाँ कीर्तनों में यहाँ यमुना पुलिन सुबह कुंज पर हिंडोरा में विराजमान श्याम सुंदर की स्वरूप सुधा का रसबान राधा जी ने ललना शब्द कराया है। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ।